Hare Krishna. So yesterday we celebrated the festival of Lord Nityananda's appearance day, Nityananda Rishi. So many of you are new to the Sampradaya and the appearance and activities of Lord Nityananda. So you see in the altar, the two deities were standing their hands up in the sky, and left side is the Lord Nityananda, and right side is Lord Gauranga. Who is Lord Nityananda? Who is Lord Gauranga? So Lord Krishna appeared as Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Balaram is appeared as a Lord Nityananda. But behind the story is a long story. In short, Lord Nityananda is appearing as a Lord's dear servant, as a guru. Balaram is the spiritual master of the whole world, Vishwa Guru. Similarly, Lord Nityananda is none other than the Lord Balaram. So he appeared in the Kali Yuga as a Chadma avatar. Not directly, but indirectly, they are Gaurnita as a Krishna Balaram. Secret incarnation it is called in the Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya's incarnation is a secret incarnation. Krishna Vardam Tusha Krishnam Sango Panga Saparshadam Yadne Sanketan Pray Ajanti Sumidesa. So the only people who are connected to the Sampradaya, they will know the Lord's appearance and disappearance. Other people might read, but they can't understand Lord Nityananda. By devotional service, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhaktamam Abhijanati Yavat Echasmi Hota. Only by devotional service one can understand me as I am. Even when Krishna appeared in the Dwapar Yuga, uh, many of the people didn't accepted Krishna supreme personal Godhead. They think that Krishna is a superhuman or Krishna is a human being. His body is like us only. But Krishna's body is made up of not this material world. He is a transcendental body, Sachidananda Vigraha. So, why Chaitanya Mahaprabhu has appeared as a secret incarnation? The question comes: why Lord Nityananda has appeared as a secret incarnation? So, in the Vishnu Puran and so many other Puranas, it is mentioned that when Lord Lord Krishna wanted to experience the ecstatic love of his devotees, he assumes the form of his devotee and come as a devotee. When he comes himself as a Lord and people recognize him, he's worshipping everyone. So Krishna can't feel the bhav of his devotee. He wanted to hide those aspects of the Lord. And then he experiences the loving reciprocation of Krishna with his devotees. Because the Radharani is the supreme most object of love. She's so addicted to Krishna in her pastimes that why the gopis are so much attached to my loving pastimes, why they dedicated so much. There is a long story when Lord Krishna spoke to Narada, please go to my devotees and ask them to stop my headache. And there is only one solution to stop the headache is to bring the dust of their lotus feet. My devotees' lotus feet, bring the dust of their lotus feet. So Narada Muni went to many devotees and said, please give me dust, please give me dust. And everyone was denying. Why dust? May I go to hell? You want to go to hell? He said, no, Krishna wanted to stop his headache and asking for the dust of his devotees, lotus feet. Then all the devotees, all Mahajanas, all great souls, none of them wanted to give the dust because they know Krishna is the magical person, and he's testing maybe. But Gopi was so simple, and when Narada approached because Narada again came to Krishna and Krishna said, go to Vrindavan, ask my devotees, the gopis will give you. They're the supremest lovers. And then they went, Narada Muni went to approach gopis and he's asking the dust of his lotus feet. And the gopis said, oh, why not? If Krishna's headache may stop for 1 minute, 1 second, and may the rest of the whole life will go to the Narak Loka, it's acceptable. But my master should be happy. If I wanted to suffer the whole of my life, then it is accepted.
and they had given the dust of the lotus feet, on the one cloth, and Narada carried that dust and say, "Wow, what a gopis love for me." And then Krishna was thinking, so what is that everyone wanted to give up their selfish motives and serve me so wholeheartedly? What is in that? What is the essence of my devotion? What is that devotion? I wanted to taste that devotion. So then Krishna appeared as a secret incarnation, as a devotee, Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhakta Avtaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. This is the Panchatattva mantra in the Kali Yuga, where it is the said Panchatattvatmakam Krishna. Krishna appeared in 5 times, 5 aspects. What are the 5 aspects? The one number is Bhakta Rupa. Bhakta Rupa is Lord Chaitanya. Bhakta Swarupa is the Lord Nityananda. Bhakta Avatar is Advaita Acharya. Bhaktakhya, Bhakta Shakti, is Gadadhar Pandit. And Bhakta again, his devotees, is Narad Muni Srivas Thakur. So these 5 aspects of devotion, Lord's energies, maybe Bhakta is the incarnation like Jeev Tattva, but Advaita Acharya, Nityanand Prabhu, Gadadhar Pandit, all these incarnations are Vishnu incarnations. Just like when Lord Ramchandra has appeared, who are those 4 things, Rama, Lakshmana, Shatrugna and Bharata, who are those 4? They're the Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha. These are the 4 incarnations of the Lord Vishnu. And these 4 appeared as a Ramchandra, Lakshman, Bharata and Shatrugna. Similarly, here 5 appeared. And one is Bhakta, that is Srivas Thakur. But Bhakta Rupa is a Lord Chaitanya. So in order to propagate the Harinam mission, the second reason is to propagate this Harinam Sankirtan in Kali Yuga, which is the Yuga Dharma of this Yuga, to establish Yuga Dharma. What is the people should do in order to get the self-realization? Everyone is understanding what I am speaking? So Lord Chaitanya's incarnation is secret incarnation. I discussed why. And then the second reason, that Lord Chaitanya wanted to establish the Yuga Dharma of this Yuga. Everyone is worshipping different demigods, right? So everyone should worship one God and one holy name and one scripture, that is Bhagavad Gita, isn't it? So in order to demonstrate what is bhakti, how to carry out the bhakti, what is the goal of bhakti, so Lord Chaitanya, by his own example, in the Gita, Lord Krishna has spoke, Sarvadharma Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me, and I will relieve you from all sufferings of papa, and then you will come to me moksha. So Krishna spoke, but he has not demonstrated how to perform this bhakti. So in order to demonstrate the bhakti as an example, he comes himself to experience also. And then he performed Harinam Sankirtan along with his eternal associates, Krishna Varnanto Shah, Krishna Sango Pangastra Parshadam. This Parshad means his eternal associates. And what is Astra? Sango Pangastra, Astra. But Astra means his Harinam, not the club and bow and arrow and whatever, Sudarshan Chakra is not carrying any weapon. The only weapon is carrying the holy name in this incarnation, the secret incarnation. And then without any consideration, who is born in a Brahmin family, who is born in a rich family, who is born in Bharat Varsha, here and there, he is giving everyone this holy name, distributing the love of God, experiencing at the same time and giving the love. So it is mentioned this bhajan, which we have just sung. Akrodha Paramananda Nityananda. Nityananda itself is the name which gives the eternal pleasure, the constant pleasure to his devotees, Nityananda. And what is Paramananda? Not the pleasure of this material world, it is Paramananda. The Ananda of the Golok Vrindavan. Might be you get some pleasure in the material world, but after some 1 or 2 hours, the pleasure has lost, something you are again experiencing, you hanker for something.
So Nityananda is giving the eternal pleasure, Paramananda, and the best quality of Nityananda Prabhu is akrodha. Even if you chastise, even if you kick him, whatever the wrong words you use him, but he is never fighting with you, rebellious. He's akrodha, no anger means. And abhimana shunya. When the pride is there, then there comes the anger. But when there is no pride, there is no question of anger. And this Lord Nityananda is propagating the Harinam Sankirtan Nagare Bida, everyone. Adham Patita Jiver Dware Dware Giya. That Adham, the lowest of the mankind, he also chanting, please chant, please chant, please chant. Everyone should chant without qualifications, giving the holy name, right? Harina Mahamantra Dicchena Vilaya. Jare देखो तारे कहे दंते तृणधारी. Keeping the dante trana. Trana means the grass in his mouth, and he is folding his hand and is requesting everybody to chant the holy name. Please chant. The significance of the blade of grass is the humility. Unless the person is humble, there is no question of chanting the holy name. One should be humble enough like a blade of grass. And he said, please, bolo Gaurahari, हमारे साथ चलो, Gaurahari का नाम लो. Gaurahari means Lord Chaitanya. Gaurahari. Hari means Krishna. And Gaur means he is a Gaur Varna. Hello. So Gaurahari ka naam le lo. You know. And when Lord Chaitanya was dancing and chanting, he was falling on the ground. Sonara Parvat and Dhuletla. When the dust is accumulated whole his body, it looks like the golden form of a Lord. The mountain is golden. When the sun rises, falls on the mountain, it looks like a gold sometimes. Similarly, Lord Chaitanya's body looks like a golden. Lord Nityananda's Bhumi Gadi Jai. And then in the last stanza, Lochan Das Thakur writes, Hena avtare ja ratina janmilo. अरे भाइयों आए अवतार आपके लिए इतना दुर्बलता दयालु अवतार है. If you don't chant, if you don't accept Lord Nityananda as a Lord Balram, then लोचन बेले सही पापी एलो आ रखिलो. ऐसे बहुत सारे पापी लोग आएंगे चले जाएंगे. So they are like the cats and dogs. Quits the word without chanting the holy name, without accepting the Lord in the life. So इसलिए हमें भगवान नित्यानंद को जानना जरूरी है. And yesterday in the Bhagavatam class and in evening class also, we discussed Chaitanya Charitamrut, Chaitanya Bhagavat, many of the Leelas, pastimes of Lord Nityananda, the Bal Leela, and moreover his adult Leelas, Pavan Leelas also. So then Lord Chaitanya says, if you won't accept Lord Nityananda and accept me as the Supreme Lord, so I will not accept you. Purposefully, Lord Nityananda is coming to assist me in my mission. If you approach Lord Nityananda, then approach me, then I will accept you. A story comes in Chaitanya Bhagavat. Murari Gupta, when he saw Lord Nityananda and Lord Chaitanya in Srivas Thakur's house, he came and he offered his obeisances to Lord Chaitanya and didn't offer obeisances to Lord Nityananda. As usual, आगे हम किसी को नमस्कार करते हैं ना, मेन व्यक्ति को नमस्कार करते पहले हम, बाद में उनके असिस्टेंट को नमस्कार नहीं करते जनरली. वैसे मुरारी गुप्ता ने भगवान चैतन्य को नमस्कार किया और नित्यानंद को देखा लेकिन कुछ रेस्पेक्ट नहीं किया. देन चैतन्य ने कहा कि मुरारी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप? तो बोलते हैं कि भगवान आप जो चलाते वो मैं चलाता हूँ. आप बुद्धि चलाते हैं ना मेरी, आप जैसे चलाते हैं मैं वैसे काम करता हूँ, उसमें क्या है? तो आपने जो बोला वो किया मैंने, लेकिन टुमारो यू विल कम टू नो what mistake you have done. And in the next morning, before morning comes in the night, Lord Chaitanya appeared in the dream. And Murari Gupta was saying that Lord Nityananda is in front of the Lord Chaitanya as Ananta Shesha and is walking. And behind that is the Lord Krishna, you know. And Lord Chaitanya said to Murari Gupta, Murari, offer obeisances to Lord Nityananda first. And in the dream,
he got instruction. And then he offered himself to Lord Nityananda in a dream. And then he offered himself to Lord Krishna as a Lord Chaitanya. And he saw Balram as a Nityananda, and he saw Chaitanya as a Krishna in the dream. And then he came next day to meet Lord Chaitanya in the Srivas Thakur's house. And he offered obeisances to Lord Nityananda first, and then to Lord Chaitanya. He said, "What are you doing, Murari?" He said, "Lord, what you taught yesterday, I was doing the same." He said, "Oh, you understand what mistake you committed, you rectified it." He said, "One who offers respect to Lord Nityananda, I accept him as my dear." And then he said, he is embracing Murari Gupta. He said, "This is a real intelligence." That means when you approach the spiritual master, when the spiritual master is in front of you, you should offer obeisance to him next to the Lord, isn't it? Even if you are doing the arti in the altar and spiritual master comes in the temple, you give up the arti. The arti is not important for the Lord. More important is to stop the arti and to offer his obeisance to the spiritual master first. That is the respect of a representative of the Lord. How one should worship the spiritual master that Lord Chaitanya demonstrated. So, his mother Sachimata, why I'm speaking this, I don't know, but it comes spontaneously. Sachimata, when saw Lord Nityananda and Lord Chaitanya came together, he is assuming or is experiencing same like Krishna and Balram. There were two children. And in the house of Sachimata, there are Krishna Balram deities. Sachimata and Jagannath is worshipping the two deities. And this Lord Nityananda and Lord Chaitanya has come to the house and they saw the deities in the house. And the bhogas are offered to the deities. He said, "Hey, why you are eating this foods? This is my food. You don't accept it." And they are fighting with each other, you know. Nityananda is fighting with Balram and Lord Chaitanya is fighting with Krishna. And Sachimata said, "Hey, what are you doing? These are our idols, these are deities, Krishna Balram." Say, "No, no, we are Krishna Balram. Why are you offering to them? You should offer first to me. Hey, you go out. Krishna, you go out. Balram, you go out." बचपन है ना, भगवान है ना, तो बच्चे के जैसा वो इनको बाहर निकालो, हम अंदर बैठेंगे, हमको भोग खिलाना चाहिए पहले. So then Sachimata was laughing, and then Nityananda is speaking to Balram, and Chaitanya is to Krishna. And then Sachimata has given 5 sandeshas, you know, sweet items. And Lord Nityananda is putting in the mouth, and rest of his throw in the outside of the house. And Sachimata said, "Hey, Nityananda, what you are doing? I have given for eating. This is a prasad of the Lord." He said, "Oh, I eaten. I know." He said, "What is the rest of 4 pieces?" He said, "You see in the house, go to kitchen, you'll get it." And she went to the kitchen and she saw the 4 pieces in the kitchen. He has actually thrown out of the house. Said, "What, Nitan, what you are doing? I don't understand what Leelas." Nitan said, "This is my pastimes, you know." And he went to many Tirtha Kshetras all around India, as mentioned in the Chaitanya Bhagavat. And he offered respects to all the deities. He met many Vaishnavas over there. He came to Pandharpur also, Srirangam, Kanchipuram, Kanyakumari, Ayodhya, Kashi, Mathura, what not. All the Chardham also, you know. Lord Nitan traveled to all the holy places. And in Pandharpur he met with his Guru Lakshmi Tirthapal. And he got initiated with him. Before he was traveling to the sannyasi, to the many holy places. And then he got initiation and he was chanting the holy name. He was, you know, in the separation of Krishna. And then he went to Vrindavan to search for Krishna. He traveled for the purpose of searching Krishna everywhere. He wanted to search Krishna. But he didn't find Krishna. He said, "I came to Vrindavan, still I didn't get Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna?" And then finally he got to know that the Krishna has appeared in the Navadip Dham. And then he came to Navadip and he hid himself in the house of Nandan Acharya. And Lord Chaitanya in the dream he saw the tallest personality has appeared in Navadip. And his face is like a lotus, his eyes are like lotus, and his hands are like, you know, falling on his knees. इतना सुंदर फॉर्म देखा भगवान का और बोले कि श्रीवास हरिदास
Go, go and search. There is one personality has come to meet me. And Srivas and Haridas was searching here and there. And they saw, Prabhu, I didn't saw anyone who has come to Navadip. So no, no, search all the houses of the Brahmana, Kshatriyas, whoever there. Maybe in some houses there he is hiding himself. And they finally come out and said, no, no, Lord, no, 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 no one has come. And Lord Chaitanya himself has traveled into the places and he said, I will see the Nandanacharya's house. And when he went into the house of Nandanacharya, he saw Lord Nityan was sitting like this, waiting for Lord Chaitanya. And immediately when he saw Lord Chaitanya is coming, he stand up and he ran towards the Lord Chaitanya. And both came in front of each other and they embraced. He said, my master has come, I saw you as Krishna, Krishna. I searching Krishna everywhere now, I see Krishna in front of me. And the tears come from his eyes, the limbs were trembling, the whole body was shivering. So much ecstasy took place in the body of Lord Nityan, and they embrace and they do kirtan later on, chanting the holy names of God. And then it is said Bhagavad, Chaitanya Bhagavat, the Sankirtan movement has started in the Navadip. Lord Chaitanya is waiting for Lord Nityananda, and Lord Nityananda is waiting for Lord Chaitanya. This Krishna Balaram has started this Harinam Sankirtan mission first in Navadip Dham, right? So these are all small leelas, what Lord Nityan has not done for the entire world. So we are so fortunate that in this Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, we got the darshan of the two deities here only, not except ISKCON, not any other temple in India, only ISKCON temples. You see, Lord Chaitanya, Lord Nityananda is, putting their hands up in the sky and calling everybody to chant the holy name. What is significance of, raising hands up in the sky? That is the position of surrendering oneself, body, mind, and soul. I am yours. Just like some policemen come to the victims and they say, I'll shoot you, hands up. So they come hands up like this, surrender themselves. And then police arrest them. So it is not arresting Krishna to you or me. It is the free will. The Lord has given us the free will. And when we misuse this free will and act as independently with our mind and senses, we try to enjoy this material world without accepting the God's presence in our life. Then Lord Chaitanya and Lord Nityananda leave us. Whatever you do, you will be the result of reaction, the karma you will suffer. So when you willingly accept my presence and take shelter, then as a parents I protect you. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, like the parents, they're protecting us from the illusion of Maya, attack of Maya. So this Maya, Krishna in the Bhagavad Gita, Daivi Yosha Gunavai, Mama Maya Duratya, Mame Prapadyante Mayam Etantarandite. This external energy of mine is very, very difficult to cross over. But when surrenders unto me, he easily can cross over this ocean of nescience. So Krishna come to help you to cross this ocean of nescience. भवसागर को पार करने के लिए भगवान आते हैं. So there are the two lords, Parama Karuna Bahudvijana, Nitai Gaurchanda. Sabha Avatar Sara Shiromani, Kevala Anandakand. Kevala Anandakand. They are not demanding anything. Without qualification, just chant the holy name. Serve the Vaishnavas and offer the bhogas to Lord Krishna, Radha Krishna, Sitaram, Vittal Rukmini, any the Lord Vishnu's incarnations, You offer them the deity's prasadam and then Krishna will give you the award, his holy name. If you stop serving, you don't have the inclination to chant the holy name. When we serve Krishna, then the power comes to chant the holy name. You stop serving, you will stop chanting also. So that is Krishna wants service for your benefits. He is happy without your service, but he wanted your benefit. You are trying to enjoy this material world, serving your own senses, and you serve Krishna's senses, and Krishna will reciprocate with you. He's waiting when this soul will come to me. Prabhupada writes in one of his lectures, says Krishna is waiting when this
hopeless soul, a helpless soul comes to me. When this fool comes to me, sometimes he says, when this fool comes to me, Krishna is waiting. So we are so fortunate that just like Prabhupada, he traveled to all the holy places, in India and abroad also. And in America, he started this ISKCON's activities at Lord Chaitanya and Lord Nityananda, or Krishna and Balram. And because of their mercy, I came to the West, and they wanted that everyone should chant the holy name. पृथ्वीचे आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरडाम. So Lord Chaitanya has declared that in every town and every village, my name will be propagated and everyone will be happy. And then I will be happy. That Krishna is, miserable. The father is miserable when the son is doing mischievous activities. He is arrogant, he is addicted to so many bad things. Then father is in mind, he is very deep tension. इसको कैसे सुधरा जाए. ये सुनता ही नहीं कुछ, अपने ही चलाता है. प्रॉपर्टी मांगता है, कभी गाड़ी मांगता है, कभी कुछ भी करने के लिए मांगता है, तो कैसे उसको दे दो, सुनता ही नहीं है. जैसे भगवान भी देखते हैं कि इसको मैं अच्छा के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं मेरा, यानी उसको मैं सब दे दूंगा, लेकिन ही शुड बी ग्रेटफुल सन, कृतज्ञ होना चाहिए. तो हम कृतज्ञ पुत्र नहीं है, इसलिए हमको जेल में डाला गया सुधारने के लिए. 60 साल 70 साल का जेल का आयु है. उसके बाद भगवान जेल से निकालेंगे यदि हम सुधर गए. जेल में गवर्नमेंट क्यों डालता है, पनिशमेंट क्यों देता है, सुधरने के लिए. ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है उनको. अगर सुधर गए तो सज़ा कम होती है ना. 20 साल का 40 साल का सब 20 पे आता है, 20 का 10 साल पे आता है, बिकॉज डूइंग गुड एक्टिविटीज. देयर इज वन थिंग इन रशिया. Some local men were against the ISKCON, and that this ISKCON's people are cheating the people. In the Bhagavad Gita, it is written what they are complaining to the judge or complaining to the police. That in the Bhagavad Gita, it is written they are the demonic people, we all, and we wanted to cultivate those people and making them the asuras, like fighting people, asuras. So the whole Bhagavad Gita, nowhere is mentioned that you should fight with the innocent people. Fight with those people are demonic. The qualities of demon, the qualities of divine, and what this battle took place between the asuras and the devatas, Kauravas and Pandavas. But without understanding the purpose of Bhagavad Gita, and they are fearful of their own religion, Christianity. So they complain to the police and later on to the case filed in the court. And when he read all these things and understand what these people are doing, the judge said actually these people are doing more austerities in the jail. Let them outside. They are waking up early in the morning. They are not eating the onion and garlic. They are drinking the alcohol. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no this. इतना लिस्ट था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिलक लगाना, कंठी डालना, भगवान का नाम लेना. दिस पीपल आर वाइज पीपल. लीव देम, नो पनिशमेंट. कोर्ट के जज ने ISKCON को बोला कि authorized the bona fide organization of Lord Krishna, and Lord Krishna's message is worthwhile. So leave this ISKCON society. उसके बाद ISKCON का प्रचार जोरदार चालू हो गया रशिया में. आज ISKCON के फॉलोअर्स वहाँ पे 4 लाख से अधिक है. मेल ISKCON टेम्पल्स इन रशिया. एक टाइम था कि ISKCON का तिलक लगाना, कंठी डालना या बीट बैग उठाना मना था ऑल द सेक्युलर पीपल. लेकिन प्रभुपाद जाने के पश्चात एक क्रांति हो गया, और उस समय से राजीव गांधी की सरकार थी या इंदिरा गांधी की, किसको पता नहीं, लेकिन नाउ दिस ISKCON हैज़ वर्ल्ड वाइड. तो ये है कुछ ग्लिम्सेस हाउ द लॉर्ड चैतन्य नित्यानंदा is giving everyone chance in every town and every country that my name will be chanted. It is proved, है ना. तो हमें भारत भूमि जन्म होइले जन्म करी सार्थक कर परोपकार. Lord Chaitanya has said, when you appeared in the holy land of India, it is your duty to chant the holy name and also instruct the other girls to chant the holy name of Krishna and to read Bhagavad Gita and to serve the Vaishnavas.
These four sampradayas, they are mainly teaching about the instructions of Krishna in the Bhagavad Gita. Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumar Sampradaya, and this is the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. If you ask or somebody asks you in which Sampradaya you belong, so it's a Brahma Madhva Gaudiya. Madhvacharya is appeared in the Sampradaya. The same principles what Madhvacharya has taught, what Lord Chaitanya has taught, we are teaching the same. So in line with this Madhvacharya, this Sampradaya is bona fide. Understand? So we'll again go to the Bhagavad Gita. That's why we celebrate this Janmashtami like Nityananda Trayodasi. भगवान का appearance और disappearance में कोई फर्क नहीं, comes by his own will and he goes by his own will. So when we celebrate these festivals, our heart becomes clean by hearing, chanting and serving Krishna and his devotees. Festivals means increasing our enthusiasm, उत्साह से उत्साह प्राप्त होता है भक्ति में करने का, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं. And we ask something to Krishna on his appearance, then he awards the blessings. If you want pure service, he said, okay, granted, go ahead, serve my devotees. And this devote service is other services which we do for the rest of devatas. कोई स्वामी समर्थ का करता है, कोई गजानन महाराज, कोई साई बाबा, ये सब जो है सकाम कर्म आते, कर्मकांड सेक्शन में. वो भक्ति नहीं है. वो कुछ करने के लिए हम मांगने के लिए कुछ देते हैं वो लोग, है ना. तो कृष्णा से इन द भगवद गीता मे बी 9th chapter, I will show you the verse in the 7th chapter. Sorry. कामस्य स्थितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्ताय प्रकृति नियता स्वयं. लोग बोलते हैं इस्कॉन के लोग केवल कृष्ण क्यों बोलते हैं, बाकी देवता की पूजा क्यों नहीं बोलते. अंतवंतुम फलम तेषा तद्वद्यल्पमेधसाम देवान देव यजन्ति मद भक्ता यान्ति मापि. व्हाट ही सेज, आप इसका ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं. अल्पमेधसाम का मतलब है अल्पज्ञों का. देवान देवताओं के पास जाते हैं, देव यज देवताओं को पूजने वाले, यान्ति जाते, मेरे भक्त मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे धाम में आते हैं मेरे भक्त. तो हमें ऐसा नहीं कि देवताओं का डिसरिस्पेक्ट करना है, बट नॉट टीचिंग दिस प्रिंसिपल. गणेश का नमस्कार मत करो, गणेश को ऑफरिंग मत करो, कुछ ऐसा नहीं सिखा रहे. इवन सनातन गोस्वामी टीचर्स अस, if you want to build a temple, if you want to do something project, then first worship Lord Ganesha. गणेश का पूजन करके आप इस प्रोजेक्ट को चलाओ. क्योंकि गणेश को क्या दिया है भौतिक जगत में, जो उस प्रोजेक्ट में विघ्न आएंगे उसको दूर करने की शक्ति भगवान ने दिया है. एंड गणपति इज कैरिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नरसिंह ऑन हिज हेड. यत्पाद पल्लव युगम निधाय कुंभाद वंदे प्रणाम समये सद्वणाधिराज विघ्नान् विहन्तु बलमस्य जगत्त्रयस्यं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. सो विघ्नहर्ता, दिस श्लोक डिफाइंस. सो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भगवान के धाम नहीं जाते. किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं. वो स्वर्गलोक परम धाम नहीं है, स्वर्गलोक से नीचे आना पड़ेगा. लेकिन भगवान के धाम में जाने वाला व्यक्ति फिर से नीचे नहीं आएगा. एक बार गया तो भगवान की शाश्वत सेवा की, लेकिन देवताओं का पास जाने वाला व्यक्ति उसका पुण्य खत्म हो गया तो क्षीण पुण्य मर्तलोक विशांति, बस इस जगत में. इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे हो, मेरे धाम में आ जाओ, मेरे साथ बहुत आनंद है. इधर क्यों भटक रहे स्वर्गलोक में? स्वर्गलोक मतलब अमेरिका में. अमेरिका में क्यों जा रहे हो? इधर है ना भारत में. मैं लेकिन अमेरिका चाहिए हमको. हमारा बच्चे किधर है? अमेरिका में है, यूएस में है मेरा बच्चा. अच्छा, यूएस में क्या कर रहा है? उधर मालूम नहीं पिताजी को. और ड्रिंक करता है, मास्क करता है, क्लब हाउस में जाता है, नाइट क्लब्स में पार्टी करता है. कौन देखने वाला? उसका बच्चे क्या करेगा? उसके बच्चे का क्या करेगा उसको ही पता नहीं है. जो अभी गया ना अमेरिका, उसको पता नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा उधर जाके. वो तो हेल में जाएगा, पिताजी को भी लेके जाएगा, खुद भी जाएगा.
क्योंकि बच्चे को अगर शिक्षा नहीं दिया है भगवत धाम जाने का, भगवान का भक्त बनने का, उसको माया का दास बना दिया, तो बच्चा नरक में जाएगा, अपने लिए जिएगा तो। और ऐसे बच्चा पिताजी को लेके जाएगा नरक में, क्योंकि आपने सिखाया मुझे ऐसा जीवन, उसका फल पिताजी को मिलेगा। अंडरस्टैंड? इसलिए भागवत के तीसरे स्कंद में लिखा है, माता न सस्यात न पिता न सस्यात, कि पिता बनने का अधिकार नहीं, माता बनने का अधिकार नहीं, जब तक आपके डिपेंडेंट्स को आप भगवान का भक्ति सिखाते नहीं है। उसको भगवान का भक्ति दे दो, उसको ऑफरिंग करने के लिए सिखाओ, उसको आरती करने के लिए सिखाओ, मंदिर में जाके कथा सुनने के लिए सिखाओ। नहीं करेगा बात अलग है, लेकिन आपका धर्म था उसको मंदिर तक लाके एक बार मार्ग दिखाने का, लेकिन नहीं आया तो उसका कर्म है छोड़ देने का। लेकिन आपने मार्ग दिखाया नहीं, ना घर में गीता है, ना भागवत है, ना भगवान का घर में फोटो है, ना भगवान का प्रसाद ऑफरिंग करते हैं घर में। जिस घर में भगवान का प्रसाद ऑफरिंग नहीं होता है रोज, इसलिए कि साल में जन्माष्टमी के दिन नहीं रोज ऑफरिंग होना चाहिए, तो उसको प्रसाद दें। तो अन्न है, सिंपल हो। अगर आप रोज खा रहे हैं और भगवान का ऑफरिंग नहीं करते तो अन्न है, उसमें लाभ किसी को नहीं है, सब पाप खाने वाले लोग हैं। कौन सा श्लोक है गीता का जिसमें कृष्ण कहते हैं कि इफ यू डोंट ऑफर मी द फूड स्टफ्स देन यू आर ईटिंग जस्ट द सिंस, यज्ञ शिष्टान असिंसन्तो मुंचन्ते सर्वकिल विषय भुंकते त्वागम पापम ए पचन्ति आत्मकारणात्। आत्मकारणात्, हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम जो भी खाते हैं वो पाप है, लेकिन वही हम भगवान के लिए बनाते हैं, चपाती, सब्जी, दाल, राइस, उपमा, डोसा, इडली, सांभर और क्या नहीं, पिज्ज़ा विज़्ज़ा सब बनाते हैं ना, तो भगवान को दिखाते हैं, और कृष्णा पेड फॉर यू, प्लीज एक्सेप्ट विथ लव। वो माय डिवोटी, माय सन, एक्सेप्ट दिस, आई ब्लेस यू, माय डिवोशनल सर्विस। तो कृष्णा विथ लव एक्सेप्ट बाय जस्ट ग्लांसिंग ओवर द फूड स्टफ्स। इट इज नॉट ही इज ईटिंग विथ हिज ओन हैंड्स, इट इज रिक्वायर्ड, नो, ग्लांस और बहुत अच्छा बना है, he tests it, his all limbs are complete, any limb he can eat it, with legs he can eat it, with eyes he can eat it, with ears he can eat it, with the fingers he can eat it. There is no need to put the food stuff in the mouth, है ना। इसलिए भगवान का जो भक्ति है वो ट्रांसेंडेंटल है, ऐसा नहीं हमारे ऐसा खाना पड़ता है भगवान को, ट्रांसेंडेंटल दिव्य गुणों से है। सो मैं वो श्लोक दिखाने वाला था आपको कंफर्म करने के लिए कि कृष्ण क्या कहते हैं। वो तो नीचे के श्लोक है, लेकिन उसका ट्रांसलेट पढ़ेंगे बाद में। Those who are attending this class but not previous class, for them कामैस्तैस्ते अर्थज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। So he says, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। Now the question comes in the mind कि चलो हमें भौतिक इच्छा कुछ नहीं, हम गणपति का सेवा करते हैं, दुर्गा कुल देवता और क्या कुल हमारा कुलाचार, हमारा ग्राम देवता, उनकी पूजा करते हैं, हमारा कोई इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, तो क्या वो गलत है उनका पूजा करना? है ना क्वेश्चन आपके मन में? तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं यहां से, जिनका कोई भौतिक इच्छा नहीं है वो भगवान के पास इधर बैठे ना, वो लेके आते उनको, वो बैठे कोई भौतिक, चलो मेरे पास, इधर क्या कर रहे हैं, मेरे धाम में आ जाओ। भौतिक इच्छा है इसलिए उनके पास जा रहे हैं हम, समझ में आया? और दूसरा, यदि भौतिक इच्छा नहीं है, कृष्णा ने भी कंफर्म कर दिया इसका भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा समझो 1 मिनट के लिए, लेकिन देवता लोग 3 गुणों के अंदर है, वो 3 गुणों के ऊपर नहीं, स्वर्ग लोग कहाँ है, 3 गुणों के अंदर है, और भगवान का धाम क्या है, 3 गुणों से ऊपर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। अभी चलो मान लिया देवताओं की पूजा इतना शुद्ध रूप से किया, सब कुछ किया, और देवता लोगों ने आपको भेज दिया भगवान के धाम, एक्सीडेंटल भेज दिया, लेकिन आपको कुछ ट्रेनिंग ही नहीं मिला भगवान के भक्ति का, ऑफरिंग कैसे होता है, कथा क्या है, कीर्तन क्या है, दर्शन कैसे होता है, भक्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, वैष्णव एटिकेट से कुछ पता नहीं, आप उधर चले गए। लेकिन आप भौतिक दृष्टि से सभी वैष्णवों को ऐसे देख रहे जैसे भौतिक जगत में देखते थे, है ना, मैं क्यों सेवा करूं, आप सेवा करो,
मैं आपका सुनूंगा नहीं, मेरा आप सुनो। भगवान का भी आप इतना रिस्पेक्ट के साथ नहीं है जैसा भक्ति के साथ होता है। कथा में 2 घंटा बैठना कौन बैठेगा, 1 घंटा बहुत हो गया। इतना कौन नाम जप करे, इतना क्यों कीर्तन करेगा? यहाँ करते ना, इतना क्यों कीर्तन, इतना क्यों नाम जप? वहाँ पे 8 घंटा कीर्तन है, 10 घंटा कीर्तन है, 72 घंटा कीर्तन है। आप लोगों को बोला कि कीर्तन में थोड़ा सा बैठो, नहीं नहीं नहीं, हमको दूसरा काम है। आप लोग कीर्तन करो, दूसरा काम है तो नीचे जाओ। इधर सब लोग वैष्णव लोग हैं, भगवान का आनंद लेने वाले, भगवान को आनंद देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे वैष्णव लोगों का निवास है, आपके जैसे लोगों का निवास नहीं है। जाओ नीचे। तो स्वर्ग लोगों के निवासियों को भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं है। स्वर्ग में जो देवता लोग हैं ना, उनको भी भगवान का धाम में प्रवेश नहीं। तो हमें क्या भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा विदाउट क्वालिफिकेशन? इसलिए भगवान क्वालिफिकेशन देने के लिए ये गीता कहते हैं, मेरा भक्त बनो। हम देवताओं की निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो हम देवताओं के धाम में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे लेकिन देवताओं के लोक में जाएंगे। वहां पे बहुत सारा फैसिलिटी होगा एंजॉय करने के लिए स्वर्ग में, और आयु भी लंबी होगी। सो क्लियर हो गया ना ये आपको? हम नित्यानंद गुरु का चरण में क्यों आ रहे हैं, गौरांग महाप्रभु के चरण में क्यों आ रहे हैं, एंड व्हाट इज डिफरेंस व्हाट ही इज गिविंग एंड व्हाट द देवतास आर गिविंग। देवतास दे आर गिविंग जस्ट द मटेरियल बेनिफिट्स, है ना, घर, गाड़ी, बंगला, प्रमोशन, अच्छा स्वास्थ्य, बच्चे का प्रमोशन, बच्चे का शादी, बच्चे को अमेरिका भेजना, ये सब करेंगे वो लोग। लेकिन भगवान क्या देते हैं? बच्चे का शादी भी करेंगे वो, ऐसा नहीं कि बच्चे की शादी नहीं करेंगे भगवान। इसको इसको में भेज देंगे। वो नहीं करेंगे। बच्चे की इच्छा है ना, मुझे शादी करके भक्ति करना है, तो भगवान उसके इच्छाओं में इंटरफेयर नहीं करते, दैट इज फ्री विल। आप शादी करके भक्ति करो, कृष्ण एक्सेप्टिंग 4 varnas and 4 ashramas he created, and he accepted devotion in the grahastha ashram also. Arjuna was a grahastha, for example. Prabhupada was a grahastha. All acharyas are grahasthas. Ramanujacharya was a grahastha. Vishnu Swami was the grahastha. So many of the great souls were grahasthas. हाँ, तो हमें घर में रह के भक्ति कैसे करना है वो सिखाने के लिए कृष्ण प्रोत्साहन देते हैं भक्तों के सानिध्य में रह के। घर भगवान का है, बच्चे भगवान का है, जो प्रसाद बनता है भगवान के लिए बनता है, घर में भगवान का प्रसाद ऑफरिंग होता है, आरती होता है, तो भगवान कहता है ये मेरे बच्चे हैं सब परिवार के, उनका देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी। तो भगवान बच्चों का शादी, बच्चों का नौकरी, सब ख्याल करने वाले, उसको छोड़ देने का ऊपर कृष्ण के ऊपर। ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान को छोड़ दिया था, छोड़ देना मतलब हमको सिर्फ अप्रोच होना है, लेकिन कृष्ण अंदर बैठे हैं, तो कृष्ण उस व्यक्ति को बोल देंगे कि हाँ ये मैच होता है, इनका शादी कराना। अंदर बैठे ना हो, मैचिंग हो जाएगा। इसलिए कोई डिफिकल्ट नहीं संसार में जब कृष्ण आपके साथ में। क्या कहते हैं, एक चैतन्य चरितमृत श्लोक है कि चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, केवल चैतन्य और नित्यानंद को स्मरण, लेकिन उसका विस्मरण करने से सारे संकट आ जाते हैं। भगवान का विस्मरण होने से, केवल नित्यानंद का और चैतन्य का स्मरण करने से। यदि कोई गौर निताई का नाम लेता है, गौर निताई के केवल हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलता नहीं है, लेकिन जैसे वो राधे श्याम निताई गौर हरि बोला, ऐसे जैसे मंत्र है ना, वो गौड़ीय वैष्णव लोग गाते हैं, वो भी गाते हैं यदि कोई व्यक्ति, तो भी उसको मुक्ति मिल जाता है। भगवान उसको रखते जगत, गौर निताई का नाम ले रहे हैं, गौर निताई उनके लिए आए, तो इतना पूरा मंत्र बोलता है, लेकिन आखिरी में 2 शब्द बोलते हैं, गौर निताई की जाए, शरीर छोड़ते समय उसको भगवंता मिलेगा। वैकुंठ मिलेगा उसको। That is the most magnanimous incarnation of Kali Yuga. But Krishna hides himself to the rest of the world unless they are devotees. सस्ते में ले लेंगे ना, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सीक्रेट है, हीरा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं लोग। वैसे भगवान हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो उसको मालूम ही नहीं है। 25 साल हो गया मेरे को, गौरनीत कौन मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया तो वो एकदम खुद को भाग्यवान समझ लगता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, गौरनीता ही भगवान के साथ जुड़ गया, प्रभुपाद की कृपा है, तो आई एफर्ट टू रिस्पेक्ट प्रभुपाद एंड विल फॉलो प्रभुपाद, उनका बुक पढ़ूंगा, मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करूंगा, ऐसे एक अंदर से आता है। लेकिन जो रिचुअलिस्टिक है ना, वो बोलेंगे हाँ आप इस्कॉन वाले करो आपका, हम नहीं करेंगे। अभिमान, अहंकार,
वो नहीं आएंगे भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि जो लोग देवताओं की शरण में देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो कृष्ण से अपना कनेक्शन नहीं बनाते, कृष्ण का नाम नहीं लेते, कृष्ण कथा नहीं सुनते, वो पाषंडी है, उनको मैं नरक में भेज दूंगा। आपको वर्ष में दिखाता हूँ अगली बार, चैतन्य भागवत का वर्ष है, लॉर्ड चैतन्य स्पीक्स। उनको मैं नरक में उनका सब जिम्मेदारी पूरा करते हैं, ऐसे जिम्मेदारी नहीं करते। बच्चे का शादी करते हैं, घर बनाते हैं, आने जाने वालों का स्वागत करते हैं, खिलाते हैं, लेकिन पार्टी करते हैं वो सब करते हैं। ऐसे लोगों को मैं नरक में भेज दूंगा। ऑल आर डेमोनिक कैटेगरीज, डिसाइपल्स ऑफ रावण, उनको मैं नरक में भेज दूंगा, क्योंकि इंद्रियों के लिए जीते हैं वो। किसके लिए सेवा करते हैं? उनसे कुछ मिलने के लिए, है ना। परिवार वाले, बाहर के लोग जो है, आदान प्रदान होने के लिए वो इसके शादी में जाएंगे, उसके शादी में जाएंगे, उनसे कुछ लेंगे, अपना कुछ देंगे। स्वार्थ बुद्धि, सेल्फलेस सेवा कोई नहीं करेगा, है ना। मैं शादी में नहीं हूँगा आपके, और वो लोग आपके शादी में नहीं आएंगे, वो सब ये है ऐसा पैसा। इसलिए भगवान सेंटर में है तो कोई आसक्ति नहीं है। आप आओ ना आओ, हम आपके घर पे आएंगे। दैट इज कृष्णस। कृष्ण क्या करते हैं? आप मेरी भक्ति करो ना करो, लेकिन मैं आपको अंदर बैठा हूं, अच्छा क्या है बुरा क्या है आपको समझ में बुद्धि दे दूंगा, आपके लिए अच्छा नहीं। अंदर से आवाज आती है जब गलत करने जाते हैं तो, या तो कुछ पनिशमेंट मिलता है, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, बस किया था अभी। तो कृष्ण इज द वेल विशर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। करो ना करो, मैं वेल विशर हूं आपका, ऑल द लिविंग एंटिटीज। लेकिन यदि करते हैं भगवान का भक्ति, तो जैसे 5 पुत्र होते हैं, एक के ऊपर बहुत आसक्ति होता है माता पिता का, लेकिन 4 जो सुनते नहीं उनको बोलते हैं हाँ खा पियो, कपड़े पहनो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, हम सब कुछ देंगे आपको, लेकिन प्रेम नहीं देंगे आपको। लेकिन छोटे पुत्र को प्रेम मिलेगा, प्रेम से रोटी खिलाएंगे, प्रेम से उसको सुलाएंगे अपने पास में, उसको अच्छा सा चीज कुछ पसंद का उसको ला के देंगे, है ना। तो सबको दे रहे, लेकिन उसको विशेष ध्यान है उसके ऊपर। जैसे भगवान कहते तेषा ज्ञान युक्त एकर भक्ति विशिष्यते, वो मुझसे प्रिय है बहुत। ज्ञानी लोग मुझसे प्रिय है। ज्ञानी मतलब वो ज्ञानी नहीं, भक्ति करने वाला प्रिय है, क्योंकि वो मेरा मानता है, मेरा सुनता है ना। तो वैसे भक्त बनना चाहिए। सो इट कमिंग टू द पॉइंट, इट्स 12:20 ऑलरेडी। बहुत सारे श्लोक, आप 7वां चैप्टर पढ़िए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास उतना समय नहीं है पढ़ाने के लिए। कमिंग टू द, और किसी कोई प्रश्न नित्यानंद के बारे में प्रश्न भी ले सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ। सूर्य के भागवतम में बता रहे थे कि इच्छाओं में भी 2 तरह की इच्छा में, हमें लगता है कि हमारे में कोई इच्छा नहीं है, सुप्त इच्छा या ऐसा हो सकता है, तो वो क्या है? देखो, 2 प्रकार के माइंड है हमारे, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी इच्छा छुप के बैठी है। जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क के ऊपर बहुत डेटा है, अंदर डेटा है, उसको डिलीट नहीं किया गया जब तक वो डेटा काम करेगा। वैसे मन के ऊपर जो संस्कार, चित्त के ऊपर, मन और चित्त 4 प्रकार है एक्चुअली इसमें। मन है, चित्त है, अंतःकरण है और बुद्धि है। चतुष्ट विभाग कहा गया उसको। इसके अंदर मन के अंदर 4 विभाग है, 4 कंपार्टमेंट्स का उसको। तो मन ये बाहरी रूप है हमारा, बाहर विषय में ध्यान देने वाला, उसको अप्रिसिएशन के अच्छा लगने वाला, ये मन एंजॉय कर रहा है। बुद्धि का संबंध नहीं इसमें। सब अहंकार उसको पुश करता है, हाँ अच्छा लगता है, एक चीज पर एक चीज, इसको झूठ बोलो, इसको ये करो, डोमिनेट करो, ये सब अहंकार उसको, मन को प्रमोट कर रहा है। अहंकार सबसे लास्ट में, अहंकार सबसे सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म अहंकार है। और चित्त उसका जो दूसरा पार्ट है, वो पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का सारा संस्कार चित्त के ऊपर स्टोर हो गया है। आप कौन सा बॉडी लो, लेकिन आपको वही चीज अच्छा लगेगा। एक प्रकार का कलर, एक प्रकार का खाना, वो क्लीनिंग, है ना। अभी जो संस्कार क्लीनिंग का हो गया,
वो गंदी जगह गए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको साफ सुथरा जगह चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, सब कुछ गंदा नहीं खाएंगे, बाहर का किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। मतलब जो संस्कार हो गया ना वो डीप रूटेड है, वो बाहर दूसरा जन्म लेंगे तो वही संस्कार को लेके आएंगे। और कुछ लोगों के संस्कार इतना गंदा है कि वो गलत लोगों का संग करके एरोगेंस, इलिसिट हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, मतलब जो नहीं करना चाहिए वो बराबर करेंगे लोग, मालूम है नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना संस्कार डीप रूटेड है, वो बाहर आएगा ही आएगा। इसलिए अर्जुन पूछता है कि what is this Krishna that I don't want to commit the sins but still I am committing the sinful activities? What is that? अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषम अनिच्छन वार्ष्णेय बलदिव नियोजिस्यमे। बलदिव, तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, it is lust Krishna, lust Arjuna, that because of the mode of passion the living entities indulge purposefully, forcefully to commit the sinful activities. वो पैशन है अंदर, रजगुण है ना, रजगुण के कारण से काम उत्पन्न होता है, और उस काम को पूरा करने के लिए व्यक्ति, अंदर काम आ गया ना तो उसको पूरा करने के लिए वो प्रयोजन करता है, माइंड उसको पूरा करना है, योजना बनाता है उसकी, तो उसको खींचती है माया शक्ति। जब भगवान के शेल्टर में नहीं तो माया उसके रजगुण के कारण उसको खींचती है पाप करने के लिए, आओ करो करो, इस प्लानिंग करो इस प्रकार से। तो माया शक्ति उसको बुद्धि देती है पाप करने के लिए, वो चाहता है ना पाप करने के लिए, वो कृष्णा का एनर्जी है, एंड कृष्णा's एनर्जी इज गिविंग हिम टू कमिट द सिंपल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ हिज डिजायर्स। तो जो हमारा चित्त शुद्धि करने का जो अभ्यास है ना ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो जब तक वो डीप रूटेड डिजायर उसको निकालेंगे नहीं, इट इज फॉर एंजॉयमेंट फॉर कृष्णा। फूल का सुगंध भी लेना है तो पहले कृष्ण को ऑफरिंग करके, है ना, गुलाब जामुन खाना है तो पहले कृष्ण को, हमारा कुछ इच्छा नहीं, भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद के रूप में हम ले लेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑफरिंग करने से खाने से वो आदत बन जाता है कृष्ण को आनंद देने का। फिर जैसे वो आदत पक्का बन जाएगा ना तो उसमें हमारा जो स्वार्थ बुद्धिता पहले वो खत्म हो जाएगा, अभी वो कृष्ण के लिए सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, भगवान उसको निकाल देंगे स्वार्थ की बुद्धि को। और कृष्ण को ऑफरिंग करके खाना है, कृष्ण को ऑफरिंग करके कपड़े पहनना है, कृष्ण के लिए घर है, कृष्ण के लिए गाड़ी है, ऐसा सब कृष्ण सेंटर में आके उसका जीवन कृष्णाइज बन जाएगा। सो प्रभुपाद ने कहा था एक जगह पे, वी आर नॉट इंसिस्टिंग टू पीपल टू बिकम वेजिटेरियन ओनली। आप वेजिटेरियन इसलिए हम आपको प्रशंसा करते, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन होना एक जीवन का पार्ट है, वेजिटेरियन अच्छा है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर ड्यूल सर्विस, बट नॉट बी प्राउड ऑफ बिकम वेजिटेरियन। हम मांस नहीं खाते, हम मंदिर में जाते, लेकिन हम गीता नहीं पढ़ते हम दूसरा शास्त्र पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते हम। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि बाय बिकमिंग अ वेजिटेरियन, बाय रीडिंग ऑल द शास्त्र, इफ यू नॉट बिकम द डिवोटी ऑफ कृष्ण इज ऑल यूजलेस। हम कृष्णटेरियन बोलते हैं, आप कृष्णटेरियन बनो, कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही करो। कृष्ण को अच्छा लगता नहीं पिक्चर देखना, मत करो। कृष्ण को अच्छा लगता नहीं है मॉल में जाना, मत जाओ। कृष्ण को अच्छा लगता नहीं कि भारी भारी वस्त्र पहन के घूमना, रोज एक प्रकार का वस्त्र पहन के घूमना नहीं अच्छा लगता, कृष्ण मत पहनो। बेसिक नेसेसिटी जो है ना उसके लिए जीवन दिया है। 4-5 सेट है आपके पास, दैट्स इनफ। 30 दिन के 30 सेट है किसी के पास तो माया में है वो है ना। कुछ लोग हैं 30 दिन के 30 चप्पल का सेट होता है उनका, कौन सा पहनने का। प्रभुपाद वाज मेंशनिंग वन ऑफ हिज लेक्चर, दैट आई वाज हियरिंग हिज लेक्चर, ही सेड ओ इतना बुद्धि खराब हो गया, आज कौन सा ड्रेस पहनने का, ऑफिस जाना है ना तो कौन सा ड्रेस पहनने का उसके लिए आधा घंटा लगता है उनको। दे आर वेस्टिंग द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम इन देयर लाइफ। वो आधा घंटा ड्रेस चुनने के लिए, उसका मैचिंग क्या होगा, उसके ऊपर चप्पल कौन सी पहनी जाएगी, ऐसा उनका विचार में गलत है सब। तो लेकिन पहनो ना, 4 ड्रेस में से कौन सा एक साफ सुथरा उसको पहनो, जाओ ऑफिस के लिए। वाई आर वेस्टिंग योर टाइम। सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऐसा एक प्रभुपाद ने कहा था। हमारा जीवन बहुत शॉर्ट लाइफ है, उसमें यदि हम टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो कैसे हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो इस जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, ये समझना चाहिए।
जगत का सुख प्राप्त करने के लिए हम नहीं आए, जगत में सुख है नहीं है। क्लियर योर माइंड, देयर इज नो हैप्पीनेस इन द मटेरियल। हैप्पीनेस इज इन कृष्णा's डिवोशनल सर्विस, chanting, hearing, reading and serving and eating कृष्ण प्रसादम। ये सोचना चाहिए, हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए आए हैं। ठीक है, तो 10 पे क्यों आ गए? तो मैंने शायद ये जो अभी का श्लोक है ना, अनन्य चित्तसा समर्थम योमा स्मृत तस्याम सुलम पार्थम, इसके ऊपर ही मैंने प्रवचन दे दिया अभी। प्रभु जी का प्रश्न भी हो गया, आप किसी का प्रश्न तो प्रश्न लेते हैं। चलो, देखो भगवान श्री कृष्ण, जस्ट एक श्लोक देता हूं आपको। अपि च दुराचार भजन्ते मम आनंदेवाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिंग रहता है। कृष्ण की भक्ति कर रहा है लेकिन पिछला संस्कार है ना बाहर आ गए, गलती हो गया उससे, भगवान उसको माफ कर देते। बोलते नहीं कि वो साधु नहीं है, वो साधु है। शावर के नीचे आया है ना, साफ हो जाएगा, मैं इसको साफ करूंगा। ठीक है, आप उसका ऐसा मत बनो, अरे प्रभु जी उसने क्या क्या बताया आपको, देखो चोरी किया प्रसाद, मैंने खुद रंगे हाथ पकड़ा उसको, चोरी किया उसने, प्रसाद चोरी किया ना, अच्छा है, कृष्ण प्रसाद चोरी कर देते, माखन चोरी करते थे ना। कृष्णा से सीख गया। प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, अच्छा है, दूसरा कुछ नहीं करता, कृष्ण का प्रसाद चोरी करता है, चलो कोई बात नहीं। झूठ बोलता है किसके लिए? यात्रा जाने के लिए, भगवान की यात्रा जाने के लिए झूठ बोलता है। हाँ अच्छा है, भगवान का धाम में जाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है जगत में। सच बोलेंगे तो बोलते हैं बहुत काम है इधर, क्यों जाने यात्रा, काम करो इधर, तुम्हारी जगह दूसरा कोई नहीं काम करे, इधर काम करो। बोलता नहीं, मेरे भाई का शादी है, जयपुर में शादी मेरे भाई का, जाने आने के लिए, वो सब शादी करने के लिए 1 हफ्ता चाहिए। हाँ जाओ, जाएंगे हम यात्रा में। सच बोलेंगे तो काम नहीं होता जगत में, झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए कृष्णा लाइज समटाइम्स, कृष्ण टीचर्स अस टू लाई। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था बहुत समय पहले, 2007-8 की बात थी, तो उसने पूछा प्रभु जी आप झूठ बोलने के बारे में क्या कहते हैं, मेरा ये प्रश्न है। मैंने बोला कृष्ण अलाउ करते हैं, झूठ बोलना चाहिए। कब? कृष्ण की भक्ति के लिए। तो वो बोला उसका फोन होने के पश्चात वो मंदिर में आया नहीं। सत्यवादी होना चाहिए भक्त को, आपने कैसे बोल दिया कि झूठ बोलना चाहिए? तो हम सत्यवादी कैसे हैं? ये देखो सूरज, जयद्रथ कुमार अर्जुन, ये देखो सूरज, इसको मार दो, ददत कुमार। तो भगवान ने भी झूठ बोला, सूरज के पहले ढलने से पहले उसको मारना था ना, तो ढक दिया था उसका भी, सूरज को दिखाया, अर्जुन ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूरज, उसको मार डालो। तो भगवान भी धर्म के साथ धर्म है, अधर्म के साथ अधर्म है। जो धर्म से, उनको धर्म से बात करेंगे, जो अधर्मिक है उनको अधर्म से हम उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि अधर्मिक लोगों के साथ धर्म की बातें करते हैं, उनके पास कुछ है नहीं धर्म की बात करने के लिए, विश्वास ही नहीं भक्तों के ऊपर। यदि हम आपको उनका एप्लीकेशन दे दें, प्रभु जी हम ना, प्रभु जी बोले उनको हरे कृष्णा पूजी दंड प्रणाम, हम ना कल अगले महीने में 12 तारीख से 16 तारीख नहीं है और हम वृंदावन यात्रा जा रहे, तो बोलेगा नहीं नहीं बहुत काम है इधर, ये काम कौन करेगा, नहीं जाना चाहिए आपको। बोले कौन से महीने में जाना, आप डिसाइड करो हमारा कैलेंडर, वो भी डिसाइड नहीं करेंगे। इधर ही मरो ऑफिस में 24 घंटा, इसका झूठ बोलना पड़ता है, वो लोग भक्त नहीं है। तो इस तरह से भगवान भक्तों को यदि जघन्य कर्म करते हैं तो भी साधु मानना चाहिए, से कहते हैं। उससे हाथ से कुछ मर गया, कॉकरोच मर गया है ना, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो वो जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया, उसको माफ करो। कृष्णा इज लाइक द पेरेंट, भगवान कंपनी के मैनेजर सीईओ नहीं है। कृष्णा इज लाइक अ फादर, हिज मदर। जैसे वो पूजा अर्चा करते समय कुछ गलती हो गया ना, कृष्णा बोलते हैं उसने अच्छा क्या किया, वो मैंने स्वीकार किया,
वो थोड़ा गलती हो गया, मैं देखता नहीं उसको. He started bhakti in this life, so accept his bhakti whatever it may be. ऐसा नहीं कि मुझे शुद्ध रूप से इतना पैराफेरनली, इतना प्रसाद में आइटम होना चाहिए, मैं भगवान हूँ. क्या खिलाया मुझे? नमक ज़्यादा था सब्जी में, और स्वीट में तो बिल्कुल शक्कर ही नहीं थी, और रोटी कड़क हो गई थी, और दाल तो कच्ची थी, और राइस तो अच्छा पका नहीं था. वह सब अच्छा था, सब बढ़िया था. हम बोल देंगे कि ये कच्चा था, ये पक्का था. भगवान नहीं बोलते कच्चा. इट्स एक्सेप्टिंग विथ लव. तो ये है साधु रेव समन्तवे. ही इज नॉट फाइंडिंग द फॉल्ट ऑफ अ डिवोटी, but he just appreciating the good qualities of the devotees. Right? So we should learn this aspect. P and P forward इसको कहते हैं. Positive, negative, and positive. We want to speak something negative, we should speak positive first. Appreciate those things and say, इसमें थोड़ा improve किया तो अच्छा है, बाकी सब ठीक है, इसमें थोड़ा improve करो. लेकिन बहुत ही जगह पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देयर इज नो पॉजिटिव. एन फॉर्मेट, अनलिमिटेड टाइम CN. तो हम कीर्तन करेंगे अभी, टाइम हो गया. किसी का और क्वेश्चन है तो एक तो क्वेश्चन ले सकते हैं. हाँ हाँ. अभी जैसा कि उसमें हमको भौतिक आसक्ति या भौतिक कामनाओं को कम करनी है, हाँ लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम गृहस्थ है तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी हमको करनी संभालनी है. है. तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे होना चाहिए? बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं गृहस्थ हूँ, मुझे गृहस्थ की जिम्मेदारी ये करनी है, इस लेवल के अंदर में शायद मैं मेरे भौतिक कामनाओं को, इच्छाओं को भी पालता हूँ, लेकिन वो कम करने चाहते तो फिर मन ये भी बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है. तो उसका बैलेंस, सही बैलेंस कैसा होना चाहिए? महाराज ने इसका उत्तर दिया है. इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना चाहिए, हिंदी में करना चाहिए. भगवंताप्रती प्रेम लवकरात लवकर कसे प्राप्त करता येईल. मैं इसको पहले मराठी में पढ़ता हूँ, जो लोग समझ पाएंगे इसको समझिए, उसके बाद मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेनेशन देता हूँ. हा खूप छान प्रश्न आहे. आपण जीवनातील या घराला जितके अधिक प्राधान्य देऊ, तितक्या लवकर आपण याची अनुभूती घेऊ शकू. जर ते आपले पहिले प्राधान्य असेल तर आपण अतिशय वेगाने प्रगती करू. जर ती दुसरी का तिसरी प्राथमिकता ठेवली तर आपण हळूवार प्रगती करू. प्राधान्य देणे म्हणजे जरुरी नाही की इतर सर्व काही सोडून देणे. त्याचा खरा अर्थ आहे त्या गोष्टीमागील अन्य हेतू सोडून देणे, अन्य हेतू. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, तू मला समर्पित हो. पण अर्जुन हे गृहस्थ होते, त्याचा विवाह द्रौपदी आणि सुभद्रा यांच्या झाला होता, आणि त्यांना 8 मुले होती, तसेच नातवंडही होती, ते योद्धा होते. श्रीकृष्ण भगवत ऐकल्यानंतर ते संन्यासी म्हणजे वैरागी झाले नाहीत. ते क्षत्रिय असल्याने त्यांनी त्यांची युद्धाचे कर्तव्य केले आणि पारिवारिक जबाबदारी पार पाडल्या. परंतु आता त्यांनी ही सेवा सर्व सेवा वृत्तीने केली, स्वार्थी वृत्तीने किंवा शोषणाच्या भावनेने नाही. त्यांची ही कृती भगवत प्रेमाची निर्दर्शक होती. अर्जुन यांनी कृष्ण प्रेम आणि कृष्णाप्रती समर्पण याला जीवनातील प्राधान्य बनवले होते. याचा अर्थ हा आहे की त्यांचा व्यवसाय, त्यांची पारिवारिक स्थिती त्यांनी योग्य पद्धतीने हाताळली होती. त्यांनी त्यांचा त्याग केला नाही. त्यांनी त्याग केला तो मोह, काम, मत्सर, अहंकार याचा, आणि मग शुद्ध चेतनेत सेवा करण्याच्या इच्छेने त्यांनी त्या परिस्थितीत भगवंतांच्या प्रेमाच्या ध्येयाची इच्छा केली. तर भगवंताचे प्रेम विकत करण्यासाठी तुम्हाला शाळा सोडण्याची गरज नाही, परिवार सोडण्याची गरज नाही. तुम्हाला या जबाबदारीमागचा उद्देश भगवत प्रेम प्राप्तीच्या उद्देशाशी एकरूप करावा लागेल, आणि हे अगदी सहजरित्या होते जेव्हा आपण अशा लोकांच्या संगतीत राहतो जे लोक पूर्वीपासून हे करत आहेत. म्हणून काउंसलर, अच्छा इसका हिंदी में किसको इसको समझ में नहीं आया ऊपर हाथ कीजिए, जब समझ में नहीं आया. 1 2 3 4 ठीक है. तो महाराज इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं. बोलते हैं कि पहले प्रश्न बोलता हूँ मैं कि भगवान के प्रति जल्दी प्रेम कैसे प्राप्त हो, जल्दी जल्दी प्रेम प्राप्त हो, ऐसे कितना समय लगेगा, ऐसा लगता सोचते हैं ना. तो महाराज बोलते हैं कि हम जीवन में जितना
ज़्यादा इसको महत्व देंगे, प्राथमिकता देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, उतना हम इस प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि जब हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन में कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण की सेवा करना, तो हम जल्दी प्रगति करेंगे। लेकिन इसका हमने सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी दे दिया सब होने के पश्चात, है ना, प्रसाद हो गया, रेस्ट हो गया, ऑफिस हो गया, शाम को आके जब करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी, एकदम लास्ट प्रायोरिटी, तो हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रगति नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ये जन्म में 20%, अगले जन्म में 20%, उसके अगले में 20%, फिर ऐसा कर करके 5-6 जन्म में 100%। ये परिवर्तन नहीं है। तो बोलते हैं कि प्रायोरिटी डज नॉट मीन दैट गिव अप एवरीथिंग। थोड़ा इंग्लिश वर्ड चलेगा, गिव अप एवरीथिंग। द मेन मीनिंग ऑफ दिस इज टू गिव अप द इंटेंशन बिहाइंड इट। उसका पीछे इंटेंशन क्या था, जो हमने उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसके पीछे का इंटेंशन जो स्वार्थ था ना, उसको छोड़ना, ये महाराज है। लॉर्ड कृष्णा स्पोक टू अर्जुना दैट सरेंडर unto me. But what is surrender unto me is because Arjuna was a grahastha. He got married to Draupadi and Subhadra, and then he has 8 children and grandchildren, and he was a warrior. When he heard Krishna's Bhagavad Gita from Krishna, he does not become a sannyasi, renounced. He was a kshatriya, and his swadharma or his duty was to fight, and at the same time he was fighting with the soldiers, the enemies. At the same time he was executing his household duties also, and he has done all this with a service attitude, सेवावर्ती के साथ किया, not his selfish motives, not exploiting mentality. That activity, that work he has done on the account of Krishna's love. So Arjuna has surrendered and has attained Krishna Prem because he has a priority. The meaning is that his business, anyone's business, his familial condition, he has handled in such a way that he has not given up his responsibility. Responsibility को execute किया. He has not given up. What he has given up? He has given up the lust, the anger, the greed, the ego, and the attachment or illusion. And in that consciousness, in the pure consciousness, Shuddha Chetana, he has performed his duties. And he has attained Krishna's love. He has prayed for Krishna's love. And is in this way, nobody has to give up his school, his family, his business. But in order to handle this, you need to align with Krishna, Krishna's intention, the intention behind it. You have to align with Krishna's desires, and that is very easy. And when you execute in the association of such devotees who are aligning their consciousness to please Krishna, then it is very easy. समझ में आया सबको? मैं दूसरा एक चीज पढ़ रहा था इसमें, मुझे उसमें बहुत ही Your question. भक्तिमय सेवा आणि व्यवसाय किंवा अभ्यासाचे संतुलन कसे साधायचे? हाउ टू बैलेंस द लाइफ. पहले इसको मैं मराठी पढ़ता हूँ. आपल्या जीवनाचा समतोल साधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे हे ओळखणे बुद्धिमत्तेचे कार्य आहे. आधुनिक योद्धा होता आणि जेव्हा कुरुक्षेत्राचे युद्ध सुरू झाले होते तेव्हा ते केवळ हरे कृष्ण मंत्र जप करत बसले नाहीत,
त्यांनी श्रीकृष्णांकडून लक्षपूर्वक श्रवण केले आणि नंतर आपले कर्तव्य पार पाडले. जर एखादा विद्यार्थी पवित्र नावाचा जप करत असेल आणि भक्त बनण्याचा प्रयत्न करत असेल, परंतु तो अभ्यासात कमी पडत असेल, तर अशा कामगिरीने श्रीकृष्णांचा गौरव होईल का? लोक असा निष्कर्ष काढतील की जो कोणी भगवंताचे नाम घेतो तो निरुपयोगी मूर्ख बनतो. असे करणारे अभ्यासात आळशी व नापास होत असले दिसल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्याला पवित्र नामस्मरण करण्याची आणि धर्माने जीवन जगण्याची प्रेरणा मिळणार नाही. एक विद्यार्थी पवित्राचा जप करून शुद्ध जीवन जगून एक विद्यार्थी म्हणून त्याचे कर्तव्य त्याच्या क्षमतेनुसार पार पडून भगवंतांचा सर्वोत्कृष्ट गौरव करू शकतो. जर विद्यार्थी अनुकरणीय आध्यात्मिक जीवन जगत असतील आणि त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर असतील, तर ते इतर विद्यार्थ्याने असे करण्यास प्रेरित करू शकतात. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ हे संघ उच्च दर्जाचे विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांनी आपापल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उदाहरणाने भरलेले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या सभोवतालच्या इतरांना भगवंतांचा आश्रय घेण्याची प्रेरणा मिळते. थोड़ा मैं हिंदी में इसको सार रूप में बोलता हूँ कि सबसे पहले हमको बैलेंस करने के लिए कौन सा मार्ग है जो हमारा मटेरियल और स्पिरिचुअल मार्ग हम बैलेंस कर सकते हैं, ये समझना चाहिए. और उसके बाद अर्जुन ने जिस प्रकार से युद्ध किया, वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते नहीं बैठा, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से जो ध्यान से भगवदगीता सुनी थी और सुनने के बाद अपना कर्तव्य क्या योद्धा है जरूर, है ना, फाइटिंग किया. और जो व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ के केवल भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करता है और उस तरह से उसका फैमिली लाइफ, उसका स्टूडेंट लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है, तो ऐसे कारण से भगवान श्री कृष्ण का गौरव नहीं होगा, है ना, भगवान श्री कृष्ण पसंद नहीं होंगे. तो बाकी के लोग बोलेंगे जो कोई भगवान का नाम लेता है वो समाज के लिए कुछ काम नहीं करते, अपना कर्तव्य निभाते नहीं है, दे आर यूजलेस सोल, दे आर फुलिश, है ना. इसलिए जो कोई भगवान का नाम लेता है, यदि वो अपना कर्तव्य करके पवित्र जीवन जीते हुए, शुद्ध जीवन जीते हुए एक विद्यार्थी के रूप में, गृहस्थ के रूप में अपनी कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो बाकी लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे. और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में इस प्रकार के भक्त हैं जो अच्छी साधना, अच्छा व्यवहार और अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान का आश्रय लेके अन्यों को प्रेरणा देते हैं. तो ऐसा जीवन भगवान को अपेक्षित है. दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग द लाइफ. ठीक है ना. So I recommend all of you to have this book. All your doubts will be clear. Many questions. अनिश्चित परिस्थिती कशी हाताळावी तुला माहित नाही. अभी जो हो गया हादसा, आपल्या संपूर्ण आयुष्यात आपण प्रत्येक क्षणासाठी तयार असले पाहिजे. जर आपला पाय पक्का असेल तर जेव्हा वादळ येईल तेव्हा तुमच्याकडे शक्ती असेल. श्रीमद भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवता, चैतन्य चरितामृत आदी महान शास्त्रांच्या स्मरणाद्वारे येणारी बुद्धी आणि शहाणपण आपल्याकडे असेल. जर आपण तत्वज्ञानाद्वारे योग्य प्रकारे पोषित असू, पोषण, आणि आपण जर योग्य प्रकारे हरिनामाचा जप करत असू आणि इतरांप्रती अपराध करीत नसू, तर आपल्याला आध्यात्मिक सामर्थ्य आणि बुद्धी मिळते. आणि मग जेव्हा असे क्षण येतात आपण तयारीत असतो. जर आपण अशा क्षणांसाठी तयारीत नसू तर हे असे असेल की 1971 मध्ये जेव्हा आम्ही भारतातील वृंदामध्ये होतो तेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये युद्ध सुरू होते. सर्वांना असे सांगितले जायचे की रात्रीच्या वेळेस घरात राहा. ते पूर्ण वृंदावनामधील वीज बंद करायचे आणि जर तुम्ही मेणबत्ती किंवा असे काही लावत असाल तर तुम्ही पडद्यांनी खिडक्या पूर्ण झाकाव्या लागल्या होत्या. यामागची कल्पना अशी की जेव्हा शत्रूची विमाने आकाशात येतील आणि त्यांना प्रकाश दिसला तर ते बॉम्ब वर्षा करतील. त्यासाठी तयारी केली जात होती. जर तुम्हाला माहीत असेल की तुमच्यावर हल्ला केला जाणार आहे तर तुम्ही सुरक्षित राहण्याची तयारी केली पाहिजे. असे नाही की तुम्हाला हवे ते तुम्ही करा आणि त्याने काही फरक पडत नाही.
जर आपल्याला माहित आहे की माया आपल्यावर नक्कीच हल्ला करणार आहे, नक्कीच तुमच्यावर आतून आणि बाहेरून अनेक प्रकारे रोज हल्ला करेल, म्हणून आपण स्वतःला असे तयार केले पाहिजे की ध्यानपूर्वक जप करून, श्रीमद भागवताचे श्रवण करून, इतरांमध्ये होणारे अपराध टाळून, असहाय्य भावनेमध्ये प्रामाणिक प्रार्थना करून आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेसाठी टाहो फोडून आपण स्वतःची तयारी करू शकतो. मग जेव्हा वादळे येतात किंवा हल्ले होतात, तेव्हा आपली त्यासाठी काही तयारी झालेली असते. मग त्या क्षणात सुद्धा आपण सचोटतेने वागण्यासाठी आपल्याकडे त्या क्षणास्थळी सरस्वतीपणा लावली पाहिजे. काही कारणामुळे जर त्या क्षणी आपण असे काही बोललो किंवा असे काही करतो जे योग्य नाही, तर लगेचच आपणास समजेल की आपण चूक केली आहे आणि आपण ती दुरुस्त करू. पण आपण जर तयारीत नसू तर आपण ती चूक सुधारणार नाही. आपण ते कबूल पण करणार नाही की आपण चूक केली आहे. आपण तिचे समर्थन करण्यासाठी आपली बुद्धी वापरू आणि तिला कायम ठेवू. म्हणून आपण नेहमी तयारीत असले पाहिजे आणि ही तयारी आपल्याला चूक न करण्याची शक्ती देते आणि कशाही प्रकारे जर आपण चूक केली तर ती चूक सुधारण्यासाठी सुद्धा आपल्याला शक्ती प्रदान करते. आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? तो हमें अपने जीवन का गोल है ना फिक्स करना चाहिए और उसको फिक्स करते हुए भगवान के जो आदेश हैं उसको पालन करना चाहिए. और मेन आदेश है कि भगवान के बारे में सुनना, गीता भागवत को पढ़ना, प्रामाणिक रूप से ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में अधिकृत स्तोत्र से सुनना, आचार्यों से सुनना. यदि हम ये चीज़ करते हैं तो हम अपने देखो युद्ध के रहता है तो तैयारी के रहता है ना, उसके बाद शील्ड पहनते हैं. वैसे हमने शील्ड पहनी है. अभी सामने वाला शत्रु जो अटैक करने वाला है माया के द्वारा, क्योंकि सब माया में है ना, ऑफिस में कुछ अटैक होता है, घर से कुछ अटैक होता है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे अटैक होता है मन के ऊपर, तो उसको फेस करने का सामर्थ्य हम में आ जाएगा. हम ऐसा नहीं कि उसने ऐसा बोला हमने भी ऐसा बोला, उसने मार हमने दो मार दिया, तो रिजल्टेंट एक्शन क्या होगा? मारपीट होने के पश्चात तो किसी का तो खून हो जाएगा, फिर जेल में कौन जाएगा? कोई तो दोनों में सीख जाएगा, दोनों को मारपीट होगी. तो प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों माया का शिकार बन गए, दोनों मारपीट के माया को आनंद आ गया. हाँ देखो, दोनों में फाइट लगा दिया मैंने, इसके भी कपड़े फट गए, उसके कपड़े फट गए, दोनों को एक दूसरे से पीटा ना, दोनों का नुकसान है. तो मैंने ज्यादा पीटा, बोलने लगा तो मैंने उसको ज्यादा पीटा. अरे ज्यादा क्या, तुमको भी दौर लगा दिया ना सबके सामने. तो इसके कोई विजय नहीं है. माया का विजय क्या है कि हम उस समय कैसे परिस्थिति को हैंडल किया. यू लिव दैट प्लेस, यू से सॉरी, और वो छोड़ देना उसको कि उसके बस, हमारे बस में नहीं कि आपको सुधारना, छोड़ देना. लेकिन आपने गुस्सा किया, उसने गुस्सा किया, उसने ज़्यादा गुस्सा किया, हमने उसका ज़्यादा गुस्सा किया. जैसे हनुमान और वो इसका था ना कि उसने 10 योजन तो उसने 20 योजन किया, मुंह खोला था. कौन सी वो राक्षसी, सिंहिनी, वो अंदर आने के लिए बोल रहे थे हनुमान जी. हनुमान जी ने अपना मुंह बड़ा, राक्षस ने मुंह बड़ा किया, हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा किया, फिर उसने और 20 योजन किया, उसने 80 योजन किया. फिर हम बोले कि अरे वो तो चलता रहेगा, मैं छोटा बन जाऊंगा, उसके मुंह में प्रवेश करके वापिस आ जाऊंगा. ये भी कम हम्बल इनफ. वैसे हमको जीतना है शत्रु पक्ष को तो हमें नम्र बन के जिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि शब्दों को शब्द लगा के. और अक्सर परिवार में यही होता है, कोई हम्बल बनने के लिए तैयार नहीं, न सास न बहू, कोई नहीं, सब झगड़ा करने वाले. इसलिए फाइटिंग चल रहा है ना विदाउट द विजडम. ये भगवद गीता का ज्ञान नहीं उनके पास, किसी लोगों में शांति नहीं, प्रेम नहीं आपस में. इसके फायदे बहुत हैं, केवल घर का परिवार चलाने के लिए नहीं, लेकिन जो स्टॉर्म्स जीवन में आने वाले बाहर से, उसको भी संभालने के लिए हमारे पास ये शील्ड होगा, माइंड को हैंडल करने के लिए. यदि हम उस शील्ड को अच्छी से प्रैक्टिस करके भगवान का नाम जप करके, तो अंदर से आवाज़ आती है उस समय कृष्णा से कैसे रिएक्ट करना है. दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्ण चेतना में हो तो आपको कृष्ण बोलेंगे, कब क्या उत्तर देना है किसी को. Prabhupada भी sometimes when he was in the America, some report asked him very duplicitous questions. प्रभुपाद को संकट में लाने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद इतने ऐसे उत्तर देते थे. एक बार प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछा था कि सब पब्लिक में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, और प्रभुपाद को बोला कि देयर आर 4 क्लास ऑफ मैन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास. तो प्रभुपाद को बोला कि आप कौन से क्लास के हो.
दे वर एज्यूमिंग प्रॉपर सेड आई एम फर्स्ट क्लास मैन। प्रॉपर ने बोला कि मैं 5th क्लास मैन हूँ, मैं 4 क्लास से भी नीचे का हूँ। हम्बल बन गए वहाँ पे। वो बोलते थे फर्स्ट क्लास हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या होता, लोग बोलते हैं अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा, अपने आप को फर्स्ट क्लास समझ रहा, हम कहीं नीचे गिरे हुए हैं क्या, है ना। तो मतलब हमें बहस नहीं करना है। लॉर्ड चैतन्य has never taught us to win in the material world, to be defeated by in the material world। ये अच्छा विजय है हमारा, हम जीतने का प्रयास करते मटेरियल जगत में। गुरु के सामने तो कभी नहीं जीतना चाहिए। Even if you are so talented, you can't repose yourself that I am so talented, I by hearted the 700 श्लोकास। एक बार श्रील प्रभुपाद के सामने गुजराती व्यक्ति आए थे और उन्हें प्रभुपाद को बोला कि वीनो भगवद गीता, हमको 700 श्लोक कंठस्थ है। प्रभुपाद, हु इज कृष्णा? बोले कृष्णा इज दिस एंड दैट, कृष्णा इज सुपर ह्यूमन, कृष्णा इज पावरफुल मैन। तो प्रभुपाद, यू आर फूल नंबर 1। ये छोटे बेटी को बुलाया, हु इज कृष्णा? Krishna is the supreme person of Godhead. Prabhupada said this child, 5 years old, she knows Krishna is the supreme person, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और अब इतने बुद्धिमान है, 700 श्लोक कंठस्थ किए, आपको कृष्णा को नहीं पता है। हेल विथ योर नॉलेज। ऐसे भारत में बहुत लोग मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान होता है लेकिन दिखावा बहुत करते। इसलिए हमको प्रभुपाद ने सिखाया कि वी आर नॉट आफ्टर द नॉलेज, कितना नॉलेज कमाए उसके पीछे नहीं हम लोग, लेकिन हम भगवान को प्लीज करने के पीछे, विद दैट नॉलेज, विद दैट सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, विद दैट सर्विस। एटीट्यूड को बदलना है ना। भौतिक जगत में एटीट्यूड को बदलने के लिए तैयार नहीं है। एटीट्यूड को बदलना, हमारा जो पहला एटीट्यूड था वो नहीं आना चाहिए व्यक्ति में। वी डोंट वांट टू बिकम द डोमिनेटर, एंजॉयर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर। We want to become the humble servant of the servant of the servant। यदि हम भक्त बनने का प्रयास करेंगे हनुमान जी जैसा, he is giving all credits to all the monkey soldiers। हनुमान ने ऐसा नहीं बोला कि मैंने सीता का खोज किया, नहीं, ये मेरे जो भाई लोग हैं ना, उन्होंने बोला आपके अंदर वो शक्ति है, सीता को खोज निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ देम आई गॉट दिस सर्च ऑफ सीता। सो ये दूसरों को क्रेडिट देना। भक्ति मतलब whatever you do, but give this credit to all the members behind you। पर्दे के पीछे जो लोग सेवा करें ना, उनका श्रेय जाता है इसमें। और खास करके हमारे आचार्य लोगों ने जो हमको बना के दिया है, किताबें दी है, नॉलेज दिया है, मंदिर दिया है, डिटीज दिया है, प्रसाद दिया है, तो बाय देयर मीन्स ओनली वी कैन बी हियर एज अ पोस्टमैन। पोस्टमैन का खुद का कुछ नहीं है। किसी का 20 लाख रुपए का ये आ गया, पहले टेलीग्राम कुछ आता था ना, 10 लाख 20 लाख या 10,000, ऐसा पोस्टमैन दे रहा है उसको नहीं। पोस्टमैन ने किसी ने भेजा, उसका काम है कि गुड न्यूज देना, और बैड न्यूज आ गया तो पोस्टमैन का तो बैड न्यूज देना, ऐसा नहीं कि बैड न्यूज। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आज अपीयरेंस डे है। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य होके चले गए। And it is predicted Lord Chaitanya that there is one person who will born in Kheturi village। उनके पिता का नाम क्या था? दत्त। ही वॉज अ प्रिंस, एक राजा थे, कृष्णानंद दत्त। और उनके माता का नाम पद्मावती, समथिंग 2-3 पद्मावती, 1 is पद्मावती, दिस वन। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते जा रहे थे उस रास्ते से, तभी उनका जन्म नहीं हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु चांटेड नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, एंड ऑल द डिवोटीज आर आस्किंग प्रभु कौन है नरोत्तम, किसका नाम ले रहे हैं? बोले कि थोड़े ही समय में यहाँ पे खेतुरी ग्राम में नरोत्तम नाम का लड़का जन्म लेगा, भक्त जन्म लेगा, एंड ही विल डिस्ट्रीब्यूट द लव ऑफ गॉड। उनका बहुत कथा है, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए कृष्ण प्रेम वो नदी में, गंगा नदी में छुपा के रखा था, कैसे नरोत्तम दास ठाकुर आ गए, गंगा माता ने उनको कैसे रेस्पेक्ट किया। तो बहुत सारे पास हो गए, भोजन बहुत लिखे उन्होंने बंगाल में। He was so humble, even so much of knowledge। तो नरोत्तम दास ठाकुर is initiated by whom? बच्चन दास ठाकुर नहीं, लोकनाथ गोस्वामी। That is a big story।
कैसे वो एक प्रिंस का बेटा होके अपने गुरु का दीक्षा के लिए गए गुरु के पास। तो गुरु ने कहा कि आप पहले से बचपन से भक्त हो, वैष्णव हो, मेरे से श्रेष्ठ कुल में जन्म है आपका, तो मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, मैं तो शूद्र परिवार से, लोकनाथ गोस्वामी। और फिर उन्होंने उनको मना किया, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, फिर भी नरोत्तम ठाकुर ने पीछा नहीं छोड़ा, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। तो बोले कि मुझे अभी तो आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बाप रे बाप, अभी क्या करना है इस बच्चे को, मैं तो योग्य नहीं दीक्षा देने के लिए। मैं भगवान चैतन्य को पूछता हूँ, यदि उनकी आज्ञा है तो आपको दीक्षा मिलेगा। तो ये क्या करने लगे, जो लोकनाथ गोस्वामी सुबह शौच के लिए बाहर जाते थे, पहले उस जमाने में कोई टॉयलेट ऐसा नहीं था, बाहर जाना पड़ता था, तो बाहर ऐसी खेती में जाते थे, तो वहां नरोत्तम दास ठाकुर चुपके से आते थे पीछे से, उनका शौच विधि हो गया तो उस जगह को साफ करते थे, है ना, जगह को साफ सुथरा करके फिर नरोत्तम दास ठाकुर दूसरे दिन लोचन दास ठाकुर आ गए तो वो जगह देखते थे, तो लोकनाथ गोस्वामी कहते क्या ये कौन करता है सब क्लीनिंग सब तरफ। तो एक छुप के देखा, नरोत्तम दास ठाकुर सब क्लीनिंग कर रहे हैं। तो अरे क्या, अरे आप इतना गंदा काम क्यों कर रहे, भंगी जैसा, आपका तो जन्म एकदम ऊंचे कुल में और अभी क्या करे टॉयलेट साफ कर रहे। बोले गुरुजी आप ये दीक्षा नहीं देंगे ना, इसी कारण से कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लिया हूँ, इसलिए मैं अपना सेवा करता हूँ, आपका विष्ठा निकालना मेरा काम है, तो मैं विष्ठे के अंदर का कीड़ा हूँ, है ना, हु सेज आई एम द वॉर्म इन द स्टोल, कोई बोल सकता है ऐसे, आई एम द लोवेस्ट ऑफ द मैनकाइंड और लोवेस्ट ऑफ द क्रिएचर, मैं स्टूल का कीड़ा हूँ। वो नरोत्तम ठाकुर ने बोला मैं स्टूल का कीड़ा हूँ, तो मुझे स्वीकार कीजिए। तो लोचन ठाकुर के आंखों से आंसू आने लगा, लोकनाथ गोस्वामी was crying and then he said I initiate you। तो लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा दे दिया, नरोत्तम ठाकुर का नाम ऐसे रख दिया नरोत्तम। तो नरोत्तम दास ठाकुर वो पद्मा नदी में जब उनको कृष्ण प्रेम मिल गया तो भाग भर के नृत्य करने लगे। भगवान का प्रेम मतलब क्या है ना, बॅग द्यायची, दीप्ती मातांचा फोन आहे, त्यांचा नंबर आहे का खाली जायचं असतील, त्याचा फोन घेऊन जा, फोन कर। तो नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है, हम सब कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम चाहते हैं ना, वो कृष्ण प्रेम है क्या? कृष्ण प्रेम ये है कि हम भगवान के जब प्रेम भक्त बन जाते हैं, यू सी कृष्णा एवरीवेयर एंड forgetfulness of Krishna seems to be like one युगायितं विषण चक्षुषा परावशितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहिणम्। You can't forget Krishna in any situation of his life, whether it is pain, whether it is pleasure। तो भगवान का सब देखता है, सब चीजें भगवान देखना, और भगवान का विरह में उसको आंसू आता है, भगवान का नाम लेते समय आंसू आता है, because I am far away from Krishna, forgetting Krishna in this material world। Krishna, I am, you know, the servant of my senses, the servant of Maya, and you accepted me as your servant with all gratitude, with all love, I surrender to you, please accept me, I am a fool number one। That humility generates the Krishna prema in the heart, he becomes so humble। जैसे गोपियाँ जब श्री कृष्ण को देखती थी या कुछ सेवा करने का प्रयास करती थी, तो उसको श्री कृष्ण के लिए क्या करो क्या नहीं, अपने बच्चे का खान पीन छोड़ के, पति का टिफिन छोड़ के, नहाना पीना सब छोड़ के, कृष्ण के लिए इतनी आतुर थी कि नाइट में भी श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा ली थी, वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास भागते भागते जाती थी। दैट इज डीप अटैचमेंट टू कृष्णा, बहुत डीप अटैचमेंट है, कैंट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। बट हम जब कृष्ण के हो जाते हैं ना, जब भगवान का जो प्रेम है जब प्राप्त हो जाता है, तो हम कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, हम उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी डिसऑनर, सबने गलत समझा हमको, हम बोलते हैं हम गलत हैं। जैसे श्रीवास ठाकुर के जीवन में सब लोगों ने उनको बोला कि इसे घर में ना रात भर मांस दारू की पार्टी होती है, और बाहर सब बोतलें फेंक दी, मांस के टुकड़े सब बाहर फेंक दिया।
और सब लोगों को, गाँव वालों को बुलाया, बोले तो श्रीवास घर में क्या चलता है। तो श्रीवास ठाकुर आगे बोले कि हाँ मेरे घर में तो नशा दारू सब कुछ चलता है, हम कुछ गलत काम करते हैं, हम ऐसे लोग हैं। तो गाँव वाले बोले कि नहीं नहीं, श्रीवास ठाकुर यार वैष्णव नंबर 1। ये जो कृष्ण का प्रेम के लिए जो अपमान है ना, वो भी सहन करने की ताकत आ जाती। कृष्ण थे ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज एंड पावर एंड पोजिशन, उसके लिए ह्यूमिलिटी नहीं आएगा। ह्यूमिलिटी आएगा व्हेन वी बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। उसके लिए तो नरोत्तम ठाकुर ने वो विष्ठा का भी साफ करने का प्रयास किया ना। तो हमारे आचार्य भक्तन ठाकुर कहते हैं कि एक भजन में कि यदि हमें एक कुत्ते का जन्म मिल गया एक वैष्णव के परिवार में तो भी हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमको ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी का जन्म जो इस सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएटर है, वो पोजीशन नहीं चाहिए हमको। इंद्र का जन्म नहीं चाहिए हमको। धनवान बनने की आशा नहीं है हमको, कीर्तिवान बनने की आशा नहीं है हमको, पावरफुल बनने का आशा नहीं, बलवान, वो हमारी इच्छा नहीं है। हमारा इच्छा नहीं, हम ये भगवान के भक्तों का भक्त बने, हमारी इच्छा है। हम भगवान का भक्त बनने की इच्छा नहीं करते, हम भगवान के भक्तों का भक्त, दासानु दासानु दास, वो हम चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं बोलते हैं अपने आप को भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग बाहर जगत में। लेकिन हमारे वैष्णव लोग भगवान का कहाँ भक्त बन जाएंगे। भक्त की डेफिनेशन इतना ऊंचा है, आद्वैष्टा सर्वोत्ताना मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टम सततम योगी यच्चित्त निराशया। सच्चा भक्त मैं प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। तुल्य निंदा स्थिर मौनी, ऐसे बहुत सारे लक्षण है भक्तों के। 12वें अध्याय का जो 12 से लेकर 20 श्लोक तक है वो भक्ताष्टक है। उसमें कोई बैठता है तो बोलिए भक्त कहने वाले बाहर लोगों को बुलाइए यहाँ पे, भक्त क्या होता है हम दिखाएंगे इसमें। ये होते भक्त उसको, लेकिन हम कहाँ भक्त बनेंगे। भक्त बनने की चेष्टा करें ऐसा सोच सकते हैं हम, भक्त बनने का प्रयास करें, प्रभु हमको आशीर्वाद दो हम भक्त बने जन्म में, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भक्त बनने का प्रयास करें। आपकी प्रार्थना से हम भक्त बन सकते हैं, आप में वो शक्ति है। वह वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासी करुणा करे, दिया पद छाया शोध है हमारी तुम्हारा चरण धरी, क्षय वेग दमी क्षय दोषुति क्षय गुण देहदासी, क्षय सत संग बसेचे देह हमारे बसेचे संगेर आशु, एका त्यावर नाही पाया बल हरिनाम संकेतले, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। तो हम कृष्ण का नाम, देह कृष्ण नाम, तो भगवान का नाम कब ले सकते हैं, जब भगवान के परम भक्त वैष्णव लोग हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो हम कहाँ भगवान का नाम ले सकते अपने ज्ञान बल भक्ति के ऊपर। सो वी वांट हरि नाम, एंकरिंग फॉर दैट। प्लीज वैष्णव ठाकुर प्लीज मुझे आपका सेवा, मुझे आपका सेवा, मुझे आपका सेवा दो। वी वांट सर्विस एंड सर्विस एंड सर्विस ऑफ वैष्णवस। तो इसलिए आचार्यों ने अपना जो समर्पण दिया भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, इसलिए उनको सुनते समय, बोलते समय, सेवा करते समय कृष्ण का विरह महसूस होता था। कृष्ण का विरह मतलब कृष्ण का भक्त बन गया है, कृष्ण का सेपरेशन आना चाहिए, वो कृष्ण का प्रेम का स्थिति है। युगाहितम निमिषेण चक्षुषा पर सुन्नाहितम जगसर्वं गोविंद विनय नयनम गलद शुद्धारय वदनम गदगद हृदय गिरा उलय कर्णितम कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। When the tears will flow from my eyes, when my कंठू क्या बोलते हैं, हाँ, थ्रोट विल चोक अप, मेरे शरीर के ऊपर रोमांच कब आएगा, लिम्स में ट्रम्बलिंग, तो ऐसा स्थिति कब आएगा आपका नाम लेते समय। तो दैट इज सिग्निफिकेंस दैट प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त लक्षण है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमारे हाथ में क्या है। We want this, and that's what Lord Chaitanya has spoken 8 verses. We are not studied in this class, never. लेकिन उसमें जो चौथा श्लोक से लेके अंतिम श्लोक है उसका बोलते हैं, चौथा या तीसरा श्लोक, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव हमारी, उसके बाद वाला श्लोक, पहले हम्बल वाला, सहनशील वाला,
उसके बाद भगवान बोलते कि न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति राहित। आई वांट ओनली सर्विस, birth after birth, birth after birth, birth after birth, सर्विस 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 ऑफ योर ड्यूटीज। आहे तो की भक्ती, भवतात भक्ति आहे तो की तो, ओनली सर्विस नहीं, आहे तो की तो। और उसके बाद वो वर्ष आता है नैनम गंधा शुद्धा है। तो ये श्रद्धा, अनर्थ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, भाव, प्रेम, आसक्ति, ऐसे स्टेप्स है उसके चरण शिष्टाष्टकम के। तब जाके हम श्री कृष्ण का भक्त बनेंगे। श्री कृष्ण भक्त मतलब क्या? आश्लिष्य पादरताम पिनष्टम आदर्श नाम नाम महर्तु करतवा यथा तथा व विदता तु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सर्वेनापर। वेदर यू एम्ब्रेस मी, वेदर यू रिजेक्ट मी, बट आई एम योर सर्वेंट अनकंडीशनल। भगवान का भक्ति में स्तुति मिल रहा है इसलिए हम भगवान का भक्ति नहीं कर रहे। भगवान का भक्ति में हमको मार भी मिलता है, मैंने प्रचार करते समय कोई मारता है तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखो। आपको यदि वो जो सार्वभौम प्रभु सचिव प्रभु जैसे हाल करते थे हम लोगों को, तो हम वो भगवान का नाम लेते नहीं, बोलते हाँ हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, हमको छोड़ दो जेल से। वो लोग प्रचार करे थे रशिया के अंदर जेल में, तो केजरी पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया और उनको खाना पीना सब बंद कर दिया, उनको टेम्परेचर, बहुत सारे बीमारी हो गई, लेकिन नाम नहीं छोड़ा, कृष्ण कथा नहीं छोड़ा। तो स्पीकिंग टू ऑल द विक्टिम्स, कृष्ण कथा जो सुना था, पुस्तक नहीं था पास में, लेकिन जो सुना था कृष्ण कथा वो रोज बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, एक को नीचे एक को ऊपर, दोनों मिलकर कृष्ण कथा कर रहे। कोलगेट पे से तिलक लगा रहे है ना, कंठी तो पहनी थी, चाय तो पीते नहीं थे, मतलब चाय मिलती तो चाय नहीं पीते हम। तो बाकी इसमें लहसुन प्याज था तो भी नहीं खाते थे, तो क्या खाते थे? ब्रेड और नमक, ब्रेड और नमक। तो इस बुक का नाम आ गया सॉल्टेड ब्रेड या नमकीन रोटी, ऐसा कुछ तो यहाँ। हाँ ऐसा, तो जीवन ऐसा निकाला, लेकिन उसको पुलिस ने ऐसा मार देते, ऐसा मार देते दोनों को, मतलब वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इतना। व्हाट कृष्णा इज डूइंग, ऐसा लगता है व्हाट कृष्णा इज डूइंग, हिज डिवोटीज आर बीटिंग इन द जेल। तो उनको भगवान कभी कभी सपने में उनका दृष्टांत में आते थे, बट द ग्लिम्स ऑफ कृष्णा दे वर टॉलरेटिंग एवरीथिंग। ये कृष्ण प्रेम है। कृष्णा के लिए सब कुछ करने का जब साहस आ जाता है ना अंदर से, तो यू आर ड्यूटी ऑफ कृष्णा। वो कुछ भी करने के लिए, कृष्ण के लिए। प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 70, he traveled across the globe because he has that कृष्णा प्रेम। कृष्ण का प्रेम मतलब कृष्ण की इतनी आसक्ति है कि हम कृष्ण के लिए जान देने। कृष्ण बोला ऊपर से कूद जाओ नीचे, हम ऊपर से कूद देख लेता है। कृष्ण मतलब कृष्ण का जो प्योर डिवोटी है, उसने बोला, अंडरस्टैंड। सिद्धांत सर ठाकुर ने प्रभुपाद को बोला था कि व्हाट आर डूइंग इन द इंडिया, यू गो टू वेस्ट एंड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभय बाबू क्या कर रही है, जाओ अमेरिका जाओ। By hearing his words in the dream, he went अमेरिका। 15 साल वृंदावन में रह के, 15 साल की जो ठंडी उन्होंने सहन की, जो गर्मी सहन की, जो पैदल चले दिल्ली के रोड पे, वृंदावन के रोड पे, हाँ बूढ़े व्यक्ति 70 साल के, तो वो जो सहन करना है कृष्ण के लिए, वो भक्ति है, वो कृष्ण प्रेम है। वही भक्त कर सकता है जो कृष्ण के साथ उसका डीप रिलेशन है। You understand? I am not this body. I am a spirit soul. I am Krishna's eternal servant. I can do whatever for Krishna's pleasure. What Krishna demands from me, I will execute. तो कृष्ण का भरोसा रहता है कि ये व्यक्ति को ये सेवा दिया ना, और रात के 12 बजने तो वो सेवा करके जाएगा। इतना विश्वास भक्त होना चाहिए। तो ये कृष्ण के लिए मतलब देना, समय, ज्ञान, बुद्धि का उपयोग करना, कुछ मांगा कृष्ण के लिए तो तुरंत निकाल के देना, है ना, ये सब भक्ति है तो आता है, शुद्ध भक्ति है तो। कृष्ण के प्रति जो अटैचमेंट, जैसे पद्मावती देवी नाम की एक मुंबई में भक्त थी, और वो भगवान के लिए अपने जेब से
महंगे महंगे फूल ला के 16 हार बनाती थी खुद के पैसे से, तुलसी का हार भी और बाकी मोगरा, जाई जुई, चाफा ऐसे। और वो गोपीनाथ जी के लिए प्रसाद बनाती थी किचन में नीचे। तो अभी भोग लग गया पूरा, है ना, अल्टर बंद होने का समय आ गया। वो जो पैन में से गरम गरम रोटी है ना, तो पुजारी के पास लाके बोले अभी अल्टर बंद होने का समय, क्यों माता जी परेशान कर रहे हो? नहीं, गोपीनाथ जी के लिए गरम रोटी प्लीज, वो जी ले लो ना। प्लीज बोले तो क्या कर देगा, दे दो भगवान के लिए। अल्टर खोलो, फिर थाली में रख दो भगवान के। हॉस्पिटल में सब लोगों को टिफिन खिलाती थी वो, सब जो डॉक्टर्स है ना। और डॉक्टर बोलते कि पद्मावती जो है ना वो है ओटी में, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। बाकी नर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, या ऐसे काम करने वाले ऐसे भरोसेमंद थी कि उसका प्रेजेंस रहने से डॉक्टर को ऑपरेशन कितना भी कठिन हो वो आसान लगता था। बोले थे आप टिफिन मेरे लिए लेके आती हो हमेशा, इतने से डॉक्टर्स लोगों के लिए आपको पैसा कहाँ से आता है? बोलते गोपीनाथ जी बैठे हैं ना, उनको चिंता है, मेरा काम है आपको खिलाना। उनको प्रसाद अच्छा लगता था, तो पद्मावती लेके आती थी। और यात्रा के लिए ऐसे उसका कंफर्मेशन मिलता नहीं था जल्दी, क्योंकि ओटी अर्जेंसी है, वो पद्मावती को छुट्टी मत दे दो। उसको तो वृंदावन जाना है, बरसाना जाना है उसको, और कौन सी यात्रा चली, महाराज को उधर जाना है, हम्पी उड़पी। तो साल में 3 यात्रा करती थी। लास्ट तक कंफर्मेशन नहीं आया तो एप्लीकेशन लिख देती थी, मैं 4 बजे की गाड़ी में जा रही हूँ, आप संभाल लेना। ऐसे वक्त तो कौन बोलेगा मत जाओ। जाती थी भाग के, अपना एक थैली कपड़े का, बैग भी कुछ नहीं पैक करके, थैला था एक कपड़े का, उसमें कपड़ा डाल दिया, भागते भागते स्टेशन पे गई। अभी गाड़ी सामने खड़ी, निकलने वाली, 5 मिनट बाकी है, गाड़ी पकड़ ली, अंदर गई। उसके जो फ्रेंड्स लोग ये बोलते थे, पद्मावती तुम्हारा टिकट किधर है? बोलती थी टिकट हमने बोला है किसी को निकालने के लिए, वो आ जाएगा पीछे से। टिकट भी नहीं निकाला था, कंफर्म टिकट नहीं है। वो काउंटर टिकट होता है ना, काउंटर टिकट निकाल के किसी की कोच में घुस जाती थी। डेयरिंग था, लेकिन इतनी सिंसेरिटी भगवान और भक्तों के प्रति। कोई भी आए व्यक्ति तो उनको थोड़ा सा फूल लगा दो भगवान के लिए, थोड़ा सा बैठो, राजा ये राणी ये थोड़ा सा फूल लाव त्याच्यामध्ये, तिला म्हणायचं गोपीनाथचं लक्ष तिकडे जाईल, थोडं तरी तिने सेवा केली तर गोपीनाथची भक्ती त्याला मिळेल. She has so much compassion for all the living entities. She never wants any credit for any service. हॉस्पिटल में थी, उसने पूरा नया चादर डाल के, नया प्लास्टिक डाल के फूल मंगा लिए, हार बनाए इतने सारे। तो डॉक्टर्स ने पूछा कि पद्मावती हार कौन लेके जाएगा 100 किलोमीटर गोपीनाथ जी के पास? बोले गोपीनाथ जी देख लेंगे, मेरा काम है बनाने का। और कोई भक्त आता था मेरा रोड से और उन पद्मावती के हार लेके जाता था उधर। गोपीनाथ भगवान पहने ना पहने, लेकिन वो अल्टर तक चला गया ना, मेरा काम हो गया। अल्टर तक पहुंचना चाहिए बस, अंतिम क्षण तक सेवा की, नाम लेना, कीर्तन करना। ओटी में घुस गई तो सुबह 7 बजे घुस गए तो पूरा रात भर बरसाने में कैंप में सेवा कर दी थी, पूरा रात। डॉक्टर्स को ऐसा नहीं लगता था कि ये छोड़ के जाएंगे, पूरा रात सेवा करने का, दूसरे दिन जाने का। एक बार काम तो छोड़ के नहीं दे उसको, दैट इज डिवोटी। ये सारे लक्षण डिवोटी के जब आ जाएंगे हम में, तो हम भक्त बन गए। भगवान की सेवा, भक्तों का संग, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होता। कृष्णा वो सरल भक्त को, नम्र भक्तों को वो शक्ति प्रदान करते हैं। सरल होना चाहिए जीवन में, नो डुप्लिसिटी। तो ये सारे उदाहरण मैं इसलिए बोला हूँ कि वी आर नॉट द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, बट वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।